हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। ये चैनल का नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारा रिवीजन पीरियड चल रहा है, उसी रिवीजन पीरियड में पेरियोडिकल्स चैप्टर फर्स्ट में पेरियोडिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और ये भी समझ लीजिए कि इस रिवीजन पीरियड में जो आपके साथ आज आपके डिस्कस किया जाएगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप मेरे साथ साथ यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि 1 दिसंबर को हमारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है। तो बेहतर होगा कि अब हम सिर्फ स्पेसिफ़िक चीज़ें ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना अपने को दौड़ाएं और ना ही हम अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको बढ़ाएं। ओके, चलिए इसके साथ ही एक चीज़ और कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देखें और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर लगातार अपलोड करते रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके डन। चैप्टर फर्स्ट पेरियोडिकल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर आए हैं एडिनबर्ग रिव्यू 1802 to 1929। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मैंने जो आपके साथ डिस्कस करने हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैगजीन ऑफ 19th century inaugurated in 1802. Is that clear? Second point, it promoted romanticism and Whig politics. Third point, it was started by Francis Jeffrey, Sidney Smith, Henry Brougham and Francis Horner. Fourth writer started to the Edinburgh Review. Okay, next, it was published by Archibald Constable. Next point, it was published quarterly until 1929. Next point, it was about political and literary review and it supported the Whigs. Next point, the main rival was quarterly review which supported the Tories. Next point is the magazine attacked on black poets, especially William Wordsworth. Is that clear? Next magazine is the Quarterly Review. It is a political periodical founded in March 1809 by well-known London publishing house John Murray. Second point, its publication was ceased in 1967. ओके, क्वार्टरली रिव्यू के बारे में इतने ही इसके जो है मेन पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चलिए, ब्लैकवुड मैगजीन it is a British magazine printed between 1817 and 1918. Second point, it was founded by the publisher William Blackwood and was originally called Edinburgh Monthly Magazine. Third point, the first number appeared in April 1817 under the editorship of Thomas Pringle and James Cleghorn. Under these editors, the journal failed. Next point, so Blackwood again relaunched it under his own editorship under Blackwood's Ellinghurst magazine. Later it took its shorter name Mega. Okay, next, the title page bore the image of George Buchanan, a 16th century Scottish historian. Okay, ये था आपका ब्लैकवुड मैगजीन का कैरेक्टरिस्टिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर टू बात करता है अवांट गार्ड की। अवांट गार्ड, व्हाट इज़ द अवांट गार्ड? इसका पहले हम मीनिंग देखेंगे। द अवांट गार्ड फ्रॉम फ्रेंच एडवांस गार्ड और वैन गार्ड, लिटरेरी फोरगार्ड, आर pupil of works that are experimental or innovative, particularly with respect to art, culture and politics. It is hallmark of modernism. Is that clear? Avant-garde क्या है? तो avant-garde is this term is derived from French advance-garde or vanguard, literary foreguard. Okay, are pupil of works that are experimental or innovative, particularly with respect to art, culture and politics. It is a hallmark of modernism. Is that clear? Okay, next point. Avant-garde is a movement that promotes radical social reforms. It was evoked by the Saint Simonian. ठीक है, Saint Simonian Orlando Rodriguez in his essay The Artist
the scientist and the industrialist 1825, insisting that the power of arts is indeed the most immediate and faster way. Okay, next point, the important avant-garde involvements are, किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट्स था या कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, यहाँ पर ये देखेंगे। ए है डेडिज्म, बी एपिक थिएटर, सी इज़ द एक्सप्रेशनिज्म, डी इज़ द इमेजिज्म एंड ई इज़ द श्योरलिज्म, एफ इज़ द थिएटर ऑफ क्रोल्टी, जी इज़ द सरेलिज्म। ओके, तो ये हमारे पास जी पॉइंट हैं, 7 पॉइंट है ये अगर देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिज्म, बी एपिक थिएटर, सी एक्सप्रेशनिज्म, डी इमेजिज्म एंड ई श्योरलिज्म, एफ थिएटर ऑफ क्रूअल्टी एंड जी serialism. Okay, the important avant-garde involvements are chapter 3rd. The chapter 3rd is the related of the Chartist movement of Chartism 1838. 1838 की यहाँ पर डिस्कस होगा आपके साथ। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मैं समझती हूँ कि ये आपको पता होने ही चाहिए। देखिए, Chartism 1838 to extend the political sides of the working class. William Lovell drafted the Pupil Charter in 1838 as a heart of radical campaign for parliamentary reform of the inequities remaining after the Reform Act of 1832. Is that clear? Next point is the Chartist 6 demands were: first of all, votes for all men; second, equal electoral districts. Okay. Third, abolition of the requirement that members of parliament be property owners. Next point, payment for MPs. Next point, annual general elections. And the next point, the secret ballot. Okay. चार्टिसिज्म 1838 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंटेंट आपके साथ रिवाइज हो रहा है, बस उसको आप ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि चार्टिसिज्म क्या था, किस तरह की कैंपेन थी, किस तरह से लोगों ने इसके अंदर सुधार किया और किस तरह इसको आगे बढ़ाया गया। ये रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 में भी इस कैंपेन को चलाया गया, लेकिन बाद में चल के 1838 में इसी का नाम चार्टिसिज्म डाला गया। नेक्स्ट है आपके पास, आफ्टर 1.25 million सिग्नेचर द चार्टर वॉज प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1839 एंड वॉज रिजेक्टेड बाय 235-46 वोट्स। इस दैट क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि 1839 में जब इस तरह का चार्टर के ऊपर सिग्नेचर की बात हुई तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। 235 लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, सिर्फ 46 वोट्स ही इसके फेवर में पड़े थे। The second petition with 3 million signature was again rejected in 1842. 1842 में फिर से इसको रिजेक्ट किया, 3 million signatures. The third rejection of the petition in 1848 ended the movement. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 में अब हम रिफॉर्म एक्ट में आ गए हैं। रिफॉर्म एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिफॉर्म एक्ट 1832 में आता है। This act is also called the Representation of the Pupil Act or Great Reform Act of 1832 or Reform Act 1832 और First Reform Act। ये First Reform Act के नाम से भी जाना जाता है। According to preamble, the act was designed to take effectual measures for correcting diverse abuses that have long prevailed in the choice of members to serve in the Commons House of Parliament. Okay. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्लेवरी वॉज रिमूव्ड इन दिस एक्ट, मतलब इसमें ग़ुलामी को हटाया गया था। इस एक्ट के द्वारा उसको हटाने की बात की गई थी। इट वॉज लेड बाई PM चार्ल्स ग्रे। द एक्ट ग्रांटेड सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स टू लार्ज सिटीज़। द एक्ट इंक्रीज द इलेक्टोरल फ्रॉम ये आपका यहाँ पर 5 है, हाँ 5 है, देखिए तो ये है 500 to 813 which allowed
एक्ट इंक्रीज द इलेक्टोरेट फ्रॉम, इसका जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्टोरेट क्या रहा, 5 लाख। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए थोड़ा सा ऊपर, द एक्ट इंक्रीज द इलेक्टोरल फ्रॉम 5 lakh to 81,03,000 which allowed about 105 adult men from total adults male to vote from total population. The act applied only in England and was and separate Scottish Reform Act 1832 and Irish Reform Act 1832 enacted in these two countries. ओके, उन्हीं दिनों ये एक्ट भी काम कर रहे थे। ये सभी एक्ट की आज हमने रिवीजन किया है, कौन कौन से एक्ट थे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इसी तरह से आप इसको पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिए। ये एकदम रिवीजन टाइम है हमारे पास। ये पेरियोडिकल का आज हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया है, और इसके बाद पेरियोडिकल के बाद किस तरह के एक्ट आए, जैसे कि एवांट गार्ड क्या था ये हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा द चार्टिस्ट मूवमेंट यानी चार्टिसिज्म, 1838 में चार्ट एक्ट इस तरह से आया। फिर उसके बाद रिफॉर्म एक्ट आया 1832 में, और ये यहीं पर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगी। चलिए इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए फिर से अपलोड करेंगे, और आप इसी तरह चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, ताकि लास्ट तक आप बहुत अच्छे से अपने को जो है प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं आप अपने पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए आप लगातार इसी तरह हमारी वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब हम विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल पर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।